Good afternoon, friends. Or namaskar, dosto. Today, during these lockdown times, as you all know, that we have been taking topics which are primarily relevant for the purposes of the professionals, and the issues are in respect of, furthermore, the category of primarily lawyers, and we are also taking topics which have the semblance with the day-to-day affairs also. In this process, we have also been holding webinars to the effect wherein we can have finer nuances of life. And in that process, today we requested B.K. Ushadi, a senior Raj Yoga meditation teacher, and who is a management trainer also of the Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa Vidyalaya at Mount Abu. Her videos are immensely popular, and during these testing times, to understand the rigors of stress management through a trainer, we thought it's quite relevant, because we keep on reading on different social platforms that people, because of these testing times, say that there is a lot of stress. And otherwise also they say that not only during COVID-19, people feel that there is a lot of stress during life. As to whether stress is such form of life which can be managed, what are the reasons of stress, what are the facets of stress, and how it can be coped up, as to whether there are means and modes for coming out of the stress. These are the issues which keep on boggling the mind of a layman. इसका रास्ता क्या है और अपने आप को हम कैसे संभल के आगे निकल सकते हैं. And when we see the videos, the way we get the insights from gurus like Ushadi is another flip which ordinarily one should have. And one, if he looks, one also feels that, at least I could gather, is one has to be calm, and another is calm se calm. And in this pursuit, when we requested, she was kind-hearted. What we had always heard about her, that gave us the more flip, that when she readily agreed to give the insights on this topic. And at least we believe on Beyond Law CLC that if few percentage of people can also gain from the insights and they can manage to learn how to do the stress management, our purpose of these webinars have been achieved in some way or the other. Not taking much time, because as we speak, when they are good speakers, people want to listen to them and take the insights from them. That is the best way to move forward. And we have Dr. Desh Sharma from National President of Indian Medical Council, welcoming ma'am, as well as Ritu Panta, who is welcoming on behalf of the students of Shimla University, and so on and so on. Ma'am, namaskar, and over to you, because people are willing to listen to you and have the insights on a topic which is quite relevant for the present day and scenario today. Thank you very much, Brother Vikas. It is a pleasure for me and an honor to be with you all today and share some of the insights that we have on this subject of stress management. But as you were mentioning that आज के युग में हर कोई को स्ट्रेस जरूर है. खाली कोविड-19 के कारण ही स्ट्रेस हो ऐसा नहीं है. वैसे भी जिंदगी में अगर देखा जाए तो आम रीति से भी हर कोई स्ट्रेस अनुभव कर रहा है. और हमारे भ्राता अवधेश शर्मा जी तो मेडिकल फील्ड से हैं, तो नेचुरल है.
कि उनके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते ही रहते हैं, खास करके आज के युग के अंदर कई प्रकार के स्ट्रेस के कारण मानसिक कमजोरी का अनुभव करते हुए काउंसलिंग करते हैं या उसके लिए भी सलाह लेते हैं. Would you like to have it in English only completely? Ma'am, it can be bilingual. Okay, no problem. Because somebody has just mentioned that why not in English? I understand my friend is from Kerala. Okay. So I welcome your suggestion also, and no problem for me. I'm quite okay with both the languages. And so today, in today's world, we find that everyone is experiencing stress. To that extent that even small children in today's world are experiencing stress in their lives also. Because when we see that they have exams coming, then they would also say to their parents, क्या करे, बहुत टेंशन हो गया है. अगर उन बच्चों से पूछा जाए, just ask those children, what is stress? शायद वो जवाब न दे पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि they are not going through stress. They are also experiencing stress. But sometimes elders feel, उनको किस बात का स्ट्रेस होगा? खाली पढ़ाई तो करनी है, कौन सा कमाना है, जिम्मेवारी निभानी है, परिस्थितियों को फेस करना है. बस आजकल बच्चे भी बड़ों जैसी भाषा बोलने लग गए हैं. Well, it is not such that they are trying to speak the language of the elders, but they are also experiencing stress. अभी अभी विकास जी ने कहा कि what are the triggers of stress? अगर ट्रिगर्स देखने जाएंगे तो हर एक व्यक्ति के लिए जीवन में ट्रिगर्स अलग अलग होता है. But if we just go to the root cause, and so when I was looking at this subject, stress management, I was wondering, do you really want to just manage your stress? With this thought कि stress तो आता ही रहेगा, manage ही कर लेना चाहिए. या really do you want to be free from stress? क्या कहेंगे? मैनेज करना सीखना है या फ्री होना सीखना है? विकास जी क्या कहेंगे? To be free, yes. To be free from stress. मैनेज करने जाएंगे तो हर रोज नया स्ट्रेस आता रहेगा, हर रोज एक नई ट्रिगर होगी. कब तक मैनेज करते रहेंगे? And why should we use our energy in just managing that stress? Why don't we learn that art of being free from stress? But sometimes we have this illusion that it is impossible. It is impossible for us to be stress-free. Because living in this world of problems, definitely when we are facing those problems, there will be stress in some way or the other. Lekin if we just understand what is stress, then I'll just take the example कि आज किसी को बुखार क्यों आता है? No one wants to be sick. बुखार क्यों आता है? The simple logic people will give us is when the physical immunity is low and there is a slight change in the weather that affects the body with those who have low immunity, और सर्दी जुकाम बुखार आ जाता है. It's natural. डॉक्टर के पास जाएंगे, वो 2 दवाई देता है,
एक एंटीबायोटिक देगा उस वायरस को या वायरल फीवर को खत्म करने के लिए, जो वायरस है उसको, बैक्टीरिया है उसको खत्म करने के लिए, और दूसरा मल्टीविटामिन ताकि ज्यादा कमजोरी न आ जाए। और उसके बाद एक सलाह देते हैं, और सलाह उनकी यही होती है कि थोड़ा प्रॉपर फूड खाओ which gives you strength. Don't take any fast food at this time, but take some proper nourishment which gives you strength from within. ठीक से आराम करो, take proper rest and do some exercise. ये 3 चीज सलाह के रूप में देते हैं। ठीक इसी प्रकार व्हाट इज स्ट्रेस, क्योंकि आज हम देखते हैं स्टूडेंट्स का स्ट्रेस अलग है, उनके ट्रिगर्स अलग है, तो प्रोफेशनल्स का स्ट्रेस अलग है, उनके ट्रिगर्स अलग है। तो इन सच अ गैदरिंग we cannot go specifically from person to person that these are your triggers and this is how you can manage it. But the basic cause of any stress in any individual is when the spiritual immunity is low. फिजिकल इम्यूनिटी लो है तो बाहर के वायरसेस अफेक्ट करते हैं, बट व्हेन द स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, सोल पावर इज लेस, इज डिमिनिशिंग डे बाय डे, दैट क्रिएट्स स्ट्रेस विद इन ईच एंड एवरीवन। और इसीलिए आज दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स पहले के जमाने में भी आते थे, हमारे बाप दादाओं के सामने भी, ऐसा नहीं कि उनके सामने प्रॉब्लम्स नहीं थे, but they had a lot of spiritual immunity, so they were able to overcome. लेकिन आज स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इतनी लो हो गई है, जरा कुछ होता है and the first thought is it's better to die, suicide, खत्म कर दो अपने आप को, ऐसी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। हार गए, थक गए, डिप्रेशन, कई प्रकार की मानसिक बीमारियां आज अनुभव इंसान कर रहा है। तो उसका कारण ही है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लो हो गई है। अब ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाए, उसके लिए तो कोई मल्टीविटामिन है नहीं कि जो मल्टीविटामिन ले लिए और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। जिस तरह शारीरिक इम्यूनिटी लो हो जाती है और बाहर का वायरस लगा तो वी कैन सी कि बुखार आया, सर्दी जुकाम हुआ, ये साइंस है। ठीक इसी तरह जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी लो हो जाती है तो वहां जैसे बॉडी रिएक्ट करता है, यहां माइंड रिएक्ट करता है। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, अनेक प्रकार के अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है, अनेक प्रकार के दुर्भावनाएं अंदर क्रिएट होती है, मेंटल इंस्टेबिलिटी अंदर में आ जाती है। ये अनेक जो रिएक्शंस हमें दिखाई देते हैं, ये रिएक्शंस आर बेस्ड और इट शोज अस दैट द स्पिरिचुअल इम्यूनिटी इज लो, और इसीलिए माइंड रिएक्ट कर रहा है। अब जैसे कहा कि उसके लिए हमारे पास कोई मल्टीविटामिन तो है नहीं जो ठीक कर दे, लेकिन उसके लिए भी 3 चीज बहुत जरूरी है। और वो 3 चीज कौन सी है? द फर्स्ट इज हैव प्रॉपर नरिशमेंट, गिव प्रॉपर नरिशमेंट टू द माइंड। वहां बॉडी को अच्छी नरिशमेंट देनी होती है, यहां माइंड को अच्छी नरिशमेंट देनी होती है। सेकेंडली, mental relaxation is very essential, and third, exercise for the mind. मन को भी एक्सरसाइज देने के लिए, हमारा मनोबल मजबूत करने के लिए बहुत है। Coming to the first point, nourishment for the mind.
What is the nourishment for the mind? आज लोग माइंड के लिए भी फास्ट फूड ले रहे हैं, हर चीज एट द टिप ऑफ द फिंगर्स। तो माइंड का नरिशमेंट क्या है? अच्छे विचार। आज अच्छे विचार नहीं है लोगों के पास, और जो अच्छे विचार है वो खाली व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने के लिए, दूसरों के लिए। ये विचार है ना फलाने को बहुत अच्छा है, ये विचार है ना उसको बहुत काम का है, इसको फॉरवर्ड करो, उसको फॉरवर्ड करो। मेरे लिए क्या है? सो इसलिए जो खाना अपने पास आता भी है हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, बहुत दानी हो जाते हैं उसमें, और दूसरों को दान करते हैं। जब उनको मिलता है तो उसको लगता है ये फलाने को बहुत जरूरी है, उसके पास फॉरवर्ड कर देता है। और इस तरह से वो अच्छे विचार खाली फॉरवर्ड होने के लिए ही होते हैं, बट वी नेवर प्रैक्टिस दोज गुड थॉट्स इन आवर लाइफ, कि सचमुच क्या ये विचार मेरे जीवन के अंदर उपयोगी है? इज इट नेसेसरी फॉर मी? एंड इफ इट इज नेसेसरी फॉर मी, हाउ कैन आई प्रैक्टिस इट? वी नेवर पॉन्डर अपॉन दोज थॉट्स। तो अच्छे विचार कहां से मिलेंगे? उसका स्रोत क्या है? किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज जो मनुष्य का मन है ना, ये मन इतना तीव्र गति से चलता है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये मन इतना तीव्र गति से चलता है कि 1 मिनट के अंदर 25 से 30 विचार आते हैं। कम से कम गति से सोचा जाए तो भी 25 से 30 विचार, और जब स्ट्रेस होता है तो 50 से 60 विचार 1 मिनट में आते हैं। इतना तीव्र गति से, इतना फास्ट ये माइंड चलता है। ईश्वर की इतनी सुंदर क्रिएशन है ये माइंड, which can create so much beautiful thoughts also. लेकिन जब ब्यूटीफुल थॉट्स होता है तो माइंड बहुत रिलैक्स्ड वे में चलता है। आप कभी भी अच्छे विचार करके देखो, बहुत कूलली चलेंगे वो विचार, वो बहुत फास्ट गति से नहीं चलते हैं। लेकिन जब मनुष्य के मन के अंदर फालतू विचार होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, तो उसकी गति बहुत फास्ट हो जाती है। डर, जब इंसान को डर होता है तो उसके विचारों की गति कैसे चलती है? बहुत तेज गति चलती है। और इसीलिए आज मनुष्य को जब डर लगता है, क्रोध आता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तो उसके विचारों की गति बहुत फास्ट हो जाती है, तीव्र गति हो जाती है। और इसीलिए जब तीव्र गति चलती है नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स के रूप में, तो लॉट ऑफ आवर एनर्जी इज जस्ट वेस्टेड। जीवन के अंदर काफी ड्रेनिंग, एनर्जी का ड्रेनिंग जो है, मेंटल एनर्जी का ड्रेनिंग हो जाता है। आज हमारे पास एक मोबाइल है, मोबाइल को भी हमें रोज चार्ज करना पड़ता है, तब दूसरे दिन उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन ये माइंड के बैटरी को लास्ट हमने कब चार्ज किया था? किया ही नहीं। और कितने सालों से हम ये माइंड की बैटरी को यूज कर रहे हैं और उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए ये इतना तीव्र वेगी हो गया है, इतना फास्ट गति से चल रहा है कि लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी ड्रेन्स, एंड व्हेन इट ड्रेन्स, naturally a person becomes mentally weak. और इसीलिए जब वीक होता है तो उसके लक्षण क्या है? गुस्सा आना। गुस्सा ये लक्षण है। तभी तो व्यक्ति कहने में कहते हैं मेरे में एक ही कमजोरी है कि बस गुस्सा बहुत जल्दी आता है।
तो गुस्सा कमजोरी है ना? किसकी कमजोरी है? शरीर की? नहीं, गुस्सा कमजोरी है मन की, आत्मा की। और इसीलिए गुस्सा है या ईर्ष्या है, जेलसी है, हेट्रेड है, एनिमोसिटी है, ये सारी जो कमजोरियां वन बाय वन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, फियर है, ये सारी जो कमजोरियां है ये दिन प्रतिदिन मन को और कमजोर करती जा रही है। और जितना मन कमजोर हो रहा है तो नेचुरल है उसकी बैटरी डिस्चार्ज है, चार्ज हो ही नहीं रही है कोई भी तरीके से, तो स्ट्रेस आना स्वाभाविक है। इसीलिए आज बच्चे बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है। आज बच्चा जब कहता है कि मुझे टेंशन हो गया है या आई फील टेंस्ड, एग्जाम्स आ रही है तो इसका मतलब वो भी ये कहना चाहता है कि मेरा माइंड वीक है, डर लग रहा है, एग्जाम फियर आ रही है उसको। एग्जामिनेशन फियर क्यों लग रही है? और वो एग्जामिनेशन फियर उसके माइंड को और डल कर रहा है, इसीलिए पढ़ा हुआ याद किया हुआ भूल जाता है। और जब भूल जाता है तो नर्वस हो जाता है, नर्वस हो जाता है तो और तनाव का एक्सपीरियंस करता है अंदर में। तो ये सब एक ऐसा विशेष सर्कल हो गया है लाइफ में। और फिर कभी कभी जीवन में व्यक्ति बाद में पश्चाताप भी करता है कि अगर थोड़ा सा उस समय शांति से मैंने काम लिया होता था, थोड़ा सा अगर मैंने धैर्यता से काम लिया होता था, थोड़ा सा अगर मैंने इस विषय पर सोचा होता था, if I would have just been a little mature, तो मैं ये गलती नहीं करता था। और ये गलती हो जाने के कारण जो मेरा प्रमोशन था, जो मेरा आगे बढ़ने का रास्ता था, वो ब्लॉक हो गया। और इसीलिए उस समय वो किसी न किसी को ढूंढता जरूर है जिसके ऊपर अपना दोष डाल सके। ये व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा इसीलिए ऐसा हुआ। क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि उसकी अपनी कमजोरी जो है वो कैसे प्ले कर रही है, वो कैसे खेल कर रही है। और इसीलिए उसको कभी कभी जो गुस्सा आता है ना, खुद पर भी गुस्सा आता है, काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता था तो आज ऐसा नहीं होता था, काश मेरे से अगर ये गलती नहीं होती थी तो ऐसा होता था। तो ये बताता है मन कमजोर हो गया है। और जब मन कमजोर हो गया है तो मन को चार्ज करना, माइंड को चार्ज करना, चार्ज करने के लिए माइंड को अच्छे विचारों से नरिश करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए आज के युग के अंदर स्पिरिचुअलिटी एक आवश्यक महसूस होने लगा है। अच्छे विचारों का स्रोत, सोर्स वही है जहां से मुझे अच्छे विचार मिलेंगे। And if I am able to regularly nourish my mind with some beautiful thoughts, तो कहा जाता है जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन की जैसी क्वालिटी होगी वैसी जीवन की क्वालिटी होगी। और इसीलिए चिंतन को बहुत सुंदर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज मनुष्य का जीवन जिस क्वालिटी का हो गया है, कोई नहीं चाहता है ऐसी क्वालिटी का जीवन, लेकिन मजबूर है। तो वो चिंतन की क्वालिटी को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तो अच्छे विचारों को रेगुलरली, जिस तरह भोजन आवश्यक है शरीर के लिए तभी ताकत मिलती है,
ठीक इसी तरह दिन में एक बार कुछ समय के लिए लेट अस गिव गुड नरिशमेंट टू द माइंड। और जब अच्छा विचारों का नरिशमेंट मिलता है मन को, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन प्रफुल्लित रहने लगता है, प्रसन्न रहने लगता है। और ये बहुत जरूरी है। आज व्यक्ति के जीवन से खुशी गायब हो गई है। सोचता है ये चीज होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये चीज होगा, मेरे पास अच्छी गाड़ी होगी, मेरे पास अच्छा बंगला होगा, मेरे पास अच्छा ये साधन होगा तो मैं बहुत खुश हूंगा। लेकिन वो चीजें आने के बाद, उस दिन जिस दिन आई उस दिन खुशी हुई, उसके बाद वो खुशी भी गायब। और उसके बाद हमारी कुछ और ख्वाहिशें होने लगती है। अब ये चीज होना चाहिए तो मेरे को खुशी मिलेगी, अब ये चीज होगी तो मुझे खुशी मिलेगी, है ना। तो इसीलिए जीवन के अंदर व्यक्ति जितना खुद में सशक्त है, एम्पावर्ड है अच्छे विचारों से, तो उसको ये छोटी छोटी चीजों की उपलब्धि होने से खुशी नहीं, लेकिन उसके जीवन में निरंतर प्रसन्नता, खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह एक स्वाभाविक जीवन के अंदर रहना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसकी आवश्यकता है। दूसरा, रिलैक्सेशन, मेंटल रिलैक्सेशन। आज व्यक्ति सोता है, ड्यूरिंग आवर स्लीप ऑल्सो वी आर नॉट स्लीपिंग। और इसीलिए कहा जाता है कि स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती है लोगों को, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, तब जाकर के नींद आती है। तो सोचो ये माइंड कितना फास्ट चल रहा है कि वो स्लो डाउन ही नहीं हो रहा है। और जब स्लो डाउन ही नहीं हो रहा है तो नेचुरल है मेंटल रिलैक्सेशन कहाँ है। रात को व्यक्ति सोता है, ये शरीर थका हुआ है इसलिए शरीर सोना चाहता है, लेकिन माइंड अनेक विचारों के अंदर घूम रहा है। और इसीलिए व्यक्ति सुबह उठने पर सबसे पहले क्या करता है? जब भी उठते हैं तो उठते ही आप क्या करेंगे? क्या करते हैं? सबसे पहले जब व्यक्ति उठता है तो क्या करता है? सबसे पहले जब व्यक्ति उठता है ना तो घड़ी देखता है कितना बजा, और फिर सोचता है 10 मिनट और सो लेते हैं। और वो 10 मिनट का कभी कभी आधा घंटा, पौना घंटा हो गया और लेट हो गए काम पर जाने के लिए, कितना गुस्सा आता है फिर सबके ऊपर। अरे उठाया नहीं मुझे, क्यों नहीं उठाया? आपको देखना चाहिए कि व्यक्ति नहीं उठा है। सो वी बिकम सो फ्रस्ट्रेटेड, सो एंगर। उठाने वाले ने उठा भी दिया, अलार्म बजा भी, हमने अलार्म बंद किया, सोचा 10 मिनट सो जाते हैं, और 10 मिनट के बाद तो कोई जरूरी नहीं कि उठाने आएगा, क्योंकि उनको भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उठ गए, अलार्म बज गया, अभी उठ गए। तो कौन घड़ी घड़ी 5-5 मिनट पर आकर के उठाते रहेंगे? और ये 10 मिनट हम क्यों एक्स्ट्रा सोना चाहते हैं? 10 मिनट में क्या बैटरी चार्ज हो जाएगी, रिलैक्सेशन हो जाएगा, क्या होगा? क्यों हम सोना चाहते हैं? ये 10 मिनट इसीलिए सोना चाहते हैं क्योंकि माइंड को रेस्ट मिली ही नहीं है रात भर। रात भर मन ने तो काम ही किया सबकॉन्शियस लेवल पर, और जब सबकॉन्शियस लेवल पर मन चल ही रहा था तो मेंटल रिलैक्सेशन कहाँ है? इसीलिए चाहना होती है थोड़ी देर और सो जाए, थोड़ी देर और सो जाए, थोड़ी देर और सो जाए। आज एक बच्चे को उठाने जाओ सुबह, वो भी कहता है 10 मिनट और 10 मिनट सोने दो बस। 10 मिनट में क्या आराम मिलने वाला है? लेकिन वो चाहना है क्योंकि माइंड को रेस्ट मिली ही नहीं है।
और जब रेस्ट मिली ही नहीं है तो सोने की इच्छा तो होगी। तो मेडिटेशन आज जो एक क्रेज बनता जा रहा है दुनिया भर में, क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि मेडिटेशन से मेंटल रिलैक्सेशन जरूरी है। और ये मेंटल रिलैक्सेशन जब मिलती है मेडिटेशन के माध्यम से, तो कई लोगों का ये अनुभव होता है कि मेडिटेशन के बाद इतनी डीप स्लीप बिना कोई गोली के पहली बार हमने अनुभव किया। हमारे पास एक बहन आई थी तो वो कहती थी 12 साल से मैं गोली ले रही हूँ, मैंने कभी नेचुरल स्लीप क्या होती है वो अनुभव नहीं किया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मुझे एक नेचुरल स्लीप मिली है। तो मेडिटेशन करने से जो माइंड रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप ही यह है रिलैक्स, माइंड को रिलैक्स करो। और जिस तरह से व्यक्ति को बहुत अच्छा अगर शारीरिक आराम मिलता है रात भर में, तो दूसरे दिन इतना फ्रेश होकर के वो उठता है, उसको वो 10 मिनट एक्स्ट्रा सोने की दिल नहीं होती है, वो बहुत फ्रेश होता है और सारा दिन इतना फ्रेश, माइंड उसका बहुत क्रिएटिव हो जाता है, इतने अच्छे विचार आते हैं क्योंकि मेंटल रिलैक्सेशन उसको बहुत अच्छा मिला। So, through meditation, it has been scientifically proved that when a person meditates and he relaxes his mind, तो उसकी इंटरनल क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, अच्छे विचार। और खास करके लॉयर्स को तो जरूर है, क्रिएटिव थॉट्स आना स्वाभाविक जरूरी है, क्योंकि तभी वो अपने केस के लिए अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए अच्छे विचार, खाली दूसरों के विचार, हम बुक्स रिफर करके दूसरों के विचारों को पढ़ते रहे, ये तो नहीं चाहते हैं। एक समय आए कि हमारी भी बुक बने। लॉ बुक्स जो है, इतने बुक्स है, हर केस के लिए अलग अलग आप पढ़ते जाते हैं, दूसरों के विचार, दूसरों की क्रिएटिविटी को पढ़ा, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी क्यों नहीं काम कर रही है? अपनी क्रिएटिविटी भी तभी काम करती है जब हमारा माइंड भी रिलैक्स हो। और इसीलिए जितना मेंटल रिलैक्सेशन मेडिटेशन करने से एक स्पिरिचुअल ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारा बनता है, बहुत सुंदर तरीके से हम अपने माइंड को उस दिशा में चला सकते हैं। जब भी एक कूल एंड काम स्टेट ऑफ माइंड से हम बैठते हैं, कोई केस के ऊपर सोचते हैं, अंदर से बहुत अच्छे विचार आएंगे। और जब उस विचारों के साथ आप जाएंगे, अपने विचारों के साथ आप तैयार होकर के जाएंगे, तो नेचुरल है जो केस आप लड़ रहे होंगे, जो केस में आपको एक विश्वास है कि आप जीतेंगे ही, तो वो क्रिएटिव थॉट्स आपको इस तरह से मदद करने लगते हैं। मीन्स जो गीता में, भगवत गीता में कहा है, मेकिंग योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। सो मेडिटेशन, इसीलिए गीता के अंदर 6ठे अध्याय में व्यक्ति ने अर्जुन को भगवान ने ध्यान योग सिखाया। और ध्यान योग जब सिखाया उसको, तो यही कहा, आत्मा स्वयं का शत्रु है, उसको मित्र बनाओ। और शत्रु का कारण भी बताया कि आत्मा स्वयं का शत्रु क्यों बना है, क्योंकि अनेक प्रकार के डिजायर्स, अनेक प्रकार के नेगेटिविटीज, अनेक प्रकार की वेस्ट जितनी मन के अंदर चलती है, वो हमें अपना ही शत्रु बनाता है। तो लेट अस मेक आवर माइंड आवर बेस्ट फ्रेंड। और जब वो बेस्ट फ्रेंड बनता है तो क्रिएटिव विचार अपने आप क्रिएट होने लगते हैं अंदर से, और उस विचारों के आधार पर जो आत्मविश्वास आपका बनता है, तो हर केस में जीतना सहज स्वाभाविक हो जाता है। आपको दूसरे के विचारों को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए कहा कि मेंटल रिलैक्सेशन,
और कभी कभी बीच बीच में भी अगर थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि आपकी जो क्षमता है, पोटेंशियल है, मेंटल पोटेंशियल, वो बहुत बढ़ जाती है। मेंटल जो इनर स्टेबिलिटी है, वो इनर स्टेबिलिटी हमारी मेंटेन रहती है। आज इनर स्टेबिलिटी हमारी खत्म हो गई, और इसीलिए जब इनर स्टेबिलिटी ही नहीं है, माइंड फ्रस्ट्रेशन का अनुभव कर रहा है, और ऐसे समय में आपको केस लड़ने जाना हो तो क्या होगा? और इसीलिए जरूरी है कि मेंटल रिलैक्सेशन जब व्यक्ति के अंदर होता है तो उस मेंटल रिलैक्सेशन के साथ बहुत आत्मविश्वास, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। और तीसरी बात है एक्सरसाइज फॉर द माइंड। और मन के लिए एक्सरसाइज क्या है? तो मन को एक्सरसाइज देना पड़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग के एक्सरसाइजेस उसको देनी पड़ती है। और ये पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइज जितनी मन को मिलती है, बहुत सुंदर आप अनुभव करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप नहीं आता है। हाँ, इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज दिस अवेयरनेस कि हर कोई ये कहेगा बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एक दूसरे को सलाह देते हैं बी पॉजिटिव, लेकिन बी पॉजिटिव ये दूसरों को सलाह देने तक है। बट टू बी पॉजिटिव रियली फ्रॉम विद इन, regularly I have to give this exercise to the mind. मन को ये एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस देना जरूरी है। और जब ये पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस मिलती है तब धीरे धीरे माइंड जो नेगेटिव वेस्ट की तरफ पोजिशन्ड हो गया है, वी कैन चेंज दैट पोजिशनिंग ऑफ द माइंड, और वो पोजिशनिंग पॉजिटिव हम रख सकते हैं। अक्सर लोग एक्सरसाइज कराते हैं हाफ ग्लास वाटर और पूछते हैं कि ये हाफ ग्लास वाटर है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। ये एक्सरसाइज जरूर कराते हैं और कहते हैं आधा खाली देखने वाला नेगेटिव है, आधा भरा देखने वाला पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं यहां एक सवाल पूछूं कि मान लो कि आधा खाली देखने वाले के मन में अगर भरने का विचार आए तो क्या कहेंगे? और आधा भरा हुआ देख करके उसको भी खाली करने का विचार आए तो क्या कहेंगे? तो इसीलिए क्या नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो जाएगा? आधा खाली देखने वाला उसको नेगेटिव कह दिया और उसको भरने का विचार आ जाए कि आधा खाली देख करके उसको भरने का विचार आ जाए तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव कहेंगे या नेगेटिव कहेंगे? और आधा भरा देखने वाले को अगर वो भी खाली करने का मन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया? नहीं। तो ये जो है हर सिचुएशन में काम नहीं करते हैं, क्योंकि आधा खाली देखने वाला उसके अंदर भरने का विचार आया, वो पॉजिटिव नहीं है। ये स्टेटमेंट बहुत एक्यूरेट बनाया हुआ है। आधा खाली देखने वाले के मन में अगर भरने का विचार भी आ जाए तो भी वो नेगेटिव ही है, क्योंकि शायद वो इसलिए भरना चाहता है मेरा नाम हो कि मैंने भरा। वो ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए शायद भर रहा है। इसलिए आधा खाली देखने वाले के मन में अगर भरने का विचार भी आया तो भी वो नेगेटिव ही है। और आधा भरा हुआ देख करके जो खाली करने का विचार आया, हो सकता है कि उसको मालूम है ये पानी काफी दिनों का रखा हुआ है, ऐसा पानी कोई पी न ले, तो एक बहुत अच्छा, तो उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो बहुत काम करता है। तो इसीलिए माइंड को कॉन्शियसली वी हैव टू गिव पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेस।
और इसीलिए जितनी उसको एक्सरसाइजेस मिलती है तब जाकर धीरे धीरे पोजीशनिंग उसकी चेंज होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और ये पोजीशनिंग बहुत लाइफ में काम करती है, क्योंकि जितना नेगेटिव पोजीशनिंग होगी व्यक्ति की उतना उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, जितनी पॉजिटिव पोजीशनिंग होगी उतना वो स्ट्रेस लेवल उसका अपने आप कम कर सकेगा। तो इसलिए माइंड को स्ट्रेस फ्री बनाना है तो वी नीड टू एम्पावर आवर माइंड्स by proper nourishment through spiritual thoughts. Secondly, consciously relaxing the mind. And thirdly, by constantly giving the mind some positive thinking exercises. और जब ये तीनों प्राप्त होता है तब मन सशक्त होता है, एम्पावर्ड होता है और स्ट्रेस फ्री। जब व्यक्ति हेल्दी है, इम्यूनिटी हाई है, तो कैसा भी वेदर चेंज हो जाए इट डजंट इफेक्ट हिम। लेकिन लो इम्यूनिटी वाले को हर थोड़ा सा चेंज भी इफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक इसी तरह मेंटली एम्पावर्ड है, स्पिरिचुअली एम्पावर्ड है, तो कितनी भी बातें आए, परिस्थिति आए, प्रॉब्लम्स आए, समस्याएं आए, लेकिन बहुत अच्छी तरह से हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और उसके बावजूद भी अपना मेंटल स्टेबिलिटी को बनाए रख सकते हैं और दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सहजता से बन सकते हैं। सो विद दिस, आज क्योंकि 40 मिनट का ही अपना सेशन था तो इसलिए मैं इन 3 बातों को लेकर के स्ट्रेस फ्री कैसे होना है, बाकी तो बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत विशाल है और अनेक बातें आ सकती है इसमें और भी, लेकिन आज मैं इन कोर बातों को डिस्कस करते हुए यहाँ समाप्त करती हूँ। कोई क्वेश्चंस हो जरूर तो आपके क्वेश्चंस को मैं अवश्य लेना चाहूंगी। Thank you, ma'am. The way you developed the idea that one has to practice, then preach, as well as ponder as to one how can develop it. It gave the different dimension of the thought process. I will just check out as to whether we have any messages on the Facebook. Meanwhile, the participants can post the questions. Ma'am, we have Ritu Pata, who was one of the connecting points. I will ask her if she can have any question. Dhoni? We are unmuting her. Ritu. Yes, Ritu ma'am. बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि मेडिटेशन में ध्यान कैसे टिकाएं। ध्यान इधर उधर जाता है, आंखों के पीछे नहीं टिकता है। आंखों के पीछे टिकाने की बात नहीं है। ध्यान करने के लिए पहले मेंटली कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कोई स्ट्रेस या नेगेटिव थॉट प्रोसेस को लेकर के अगर ध्यान करने बैठेंगे तो नेचुरल है कि मन इधर उधर जरूर जाएगा, वो विचार बार बार आपके मन को खींचता रहेगा उसके तरफ। तो इसीलिए जब ध्यान करने बैठते हैं तो हम यही कहते हैं, द बेसिक फिलॉसफी इज बी सोल कॉन्शियस। जैसे व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस होता है, ईगो कॉन्शियस होता है, तो उसी से रिलेटेड विचार आते हैं। मनुष्य के मन के अंदर जो हमेशा वो समझता है अपने आप को, whatever he considers himself to be, accordingly his thought process will be. आज एक व्यक्ति डॉक्टर है और जब वो उस कॉन्शियसनेस में है कि आई एम अ डॉक्टर, तो डेफिनेटली his thoughts would be in that direction only. आज ये पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देना है, आज ये पेशेंट को डिस्चार्ज देना है, आज ये पेशेंट को ऑपरेट करना है, उसी से कनेक्टेड बातें होती है। एक व्यक्ति टीचर है, वो टीचर है तो उसको उसके स्टूडेंट्स याद आएंगे, ये क्लास को ये पढ़ाना है, ये क्लास को ये कराना है।
आज एक व्यक्ति अपने आप को एक लॉयर समझता है तो नेचुरल है ये केस में ये बातें लानी है, ये केस में ये बातें लानी है, ये केस में ये बातों को ऐड करना जरूरी है। उसी से कनेक्टेड मनुष्य जो अपने आप को समझता है, एक व्यक्ति अपने आप को पिता समझता है उस समय उसको अपने बच्चे याद आएंगे, खुद को बच्चा समझेगा तो उसको अपने माता पिता याद आएंगे, खुद को पति समझता है तो पत्नी की याद आएगी। तो इसीलिए खुद को आत्मा समझना, सोल कॉन्शियसनेस डेवलप करना, दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड मेडिटेशन। और इसीलिए आत्म स्वरूप में जितना स्थित होते हैं, द मोर आई कैन बी सोल कॉन्शियस, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारा अटेंशन, हमारी अवेयरनेस उसी डायरेक्शन में जाएंगी और उस डायरेक्शन में जाने से उसी से कनेक्टेड थॉट्स धीरे धीरे मन के अंदर आने लगेंगे। यस, एंड इट इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस कि आज मैंने मेडिटेशन शुरू किया तो कल से लेकर मेरा मन एकदम टिक जाएगा, नहीं, थोड़ा अभ्यास, कुछ समय का अभ्यास चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट में, कोई भी फील्ड में, ठीक इसी तरह ध्यान के लिए भी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और जितना व्यक्ति प्रैक्टिस करते जाता है धीरे धीरे माइंड को, लेकिन जैसे मैंने ये 3 चीज बताई कि उसको ये 3 चीज बहुत जरूरी है। गीता में भी बहुत सुंदर रीति से कहा है कि बिना ज्ञान के ध्यान नहीं है, ज्ञान से ही ध्यान है और ध्यान से अभ्यास। जितना उस ध्यान का अभ्यास करते जाएंगे तब जाकर के उसमें मास्टरी आती है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है और ज्ञान से ध्यान तभी अपने जीवन के अंदर मन को एकाग्र करने में बहुत मदद करता है। तो इसीलिए कुछ समय के लिए, और इसीलिए हम सजेस्ट यही करते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए तो बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग आवर्स, कि उस समय मन जब सो करके हम उठते हैं और बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए। दूसरे लोग जब सोए हुए तो उस समय कोई कारोबार नहीं होता है जिस कारोबार में मन जाए। तो इसीलिए हाँ, सारे दिन की थकावट के बाद आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट महसूस होगा, क्योंकि बहुत सारे विचार, बहुत सारे विषय मन के अंदर चल रहे होते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग आवर्स जो है, आपका माइंड काम हो जाता है और उस समय आप ध्यान करने बैठो तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। बेस्ट टाइम वही है मेडिटेशन के लिए। और अच्छी तरह से आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में उसमें माहिर होते जाए, उसके बाद आप कभी भी बैठेंगे तो कुछ भी आपको दिक्कत नहीं करेंगे। I hope I have answered your question. Second question, ma'am, how do we manage work related stress? Because ma'am, we students and used to think about and many things such as career, जरूर है, no doubt, कि regarding your work, बट क्या स्ट्रेस लेकर के आप करियर के बारे में सोचेंगे तो करियर बहुत अच्छा होगा। स्ट्रेस जो है लेकर के, हाँ, एक होता है जिसको कहा जाता है कि यू हैव टू बी कंसर्न्ड। बीइंग कंसर्न्ड इज नॉट रॉन्ग, लेकिन उसकी चिंता कर लेने से कि पता नहीं मेरा करियर क्या होगा, और उसके कारण जो नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि जहां स्ट्रेस होगा नेगेटिव थॉट्स जरूर आएगा, और जितना नेगेटिव थॉट्स आपका चलेगा तो उससे आपके करियर पर और भी उल्टा इफेक्ट आएगा, हम तो ये कहेंगे आपको। तो इसीलिए जो है आवश्यकता है कि अपने करियर के विषय में भी आप कंसर्न जरूर रहो, सोचो। माइंड जितना रिलैक्स हो करके आप सोचेंगे तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को बाहर ले आ सकेंगे। बाकी उसके विषय में स्ट्रेस क्रिएट करके आप चिंतित हो जाएंगे तो नेचुरल है कि आपके करियर पर भी बुरा इफेक्ट जरूर आएगा। तो इसीलिए चिंता करने की बात नहीं है। कभी भी अगर मान लो कि एक करियर में आप कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहीं आपको धीरे धीरे कोई चैलेंजेस आती है, सेटबैक भी आते हैं, नो डाउट, लेकिन सेटबैक्स फाइनल तो नहीं है। और इसीलिए जब सेटबैक्स फाइनल नहीं है, हो सकता है कि उस सेटबैक्स में से आपको कुछ सीखने को मिला। जब सीखने को मिलता है उसमें उस बात को अप्लाई कर लेते हैं तो शायद नेक्स्ट टाइम जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसमें आप बहुत अच्छे से उसको करके आगे बढ़ सकते हैं।
So there is no need to be really stressed regarding your career also. I hope I have answered your question. And this is by Shailja Sood. How to help children of age group of 4 to 5 to indulge into meditation. हाँ, उसके लिए माँ बाप को पहले मेडिटेशन में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप जितना अच्छे से उसको गाइड कर सकेंगे उतना और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी जो है मैं ये कहूंगी कि जब एक व्यक्ति धीरे धीरे बच्चों को, हमारे पास बच्चों के लिए भी मेडिटेशन सेशंस चलते हैं। इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेशन आई वाज 12 years old. I started in my childhood days only. और इसीलिए जब उस एज से शुरू करते हैं तो नेचुरल है कि जीवन के अंदर आगे बढ़ना बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत काम करता है। तो बचपन में अगर ये फाउंडेशन लग जाता है तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा होता है। ये हमने अनुभव किया, और जिसका भी हमने देखा है प्रैक्टिकली, और सचमुच अगर उन्होंने बचपन से मेडिटेशन को डेवलप किया है, माँ बाप ने उस डायरेक्शन में उसको भेजा है, तो बहुत अच्छे वो बनते जाते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन अभय जी का, हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इन कांस्टेंट नेगेटिव सिचुएशंस। डेफिनेटली सिचुएशंस आज की दुनिया के अंदर बहुत चैलेंजिंग है, और चैलेंजिंग है तो चैलेंजेस तो आएगी, लेकिन जैसे कहा कि पॉजिटिव रहने के लिए पॉजिटिव नरिशमेंट बहुत जरूरी है। कॉन्स्टेंटली हमें अपने माइंड को रेगुलरली नरिश करना पड़ता है। The more I can give positive, good spiritual thoughts to the mind, and I practice on that, gradually you can see that whatever situation has come in front of me, but in the most difficult, challenging, negative situations also, with a stable mind, you are able to overcome it in an easy manner. Instead of panicking, instead of getting frustrated, instead of reacting, नहीं, बातें आई है, परिस्थिति आई है, समस्या आई है, तो क्यों नहीं वो समस्या हमें पहला संकेत देती है। संकेत यही देती है कि नाउ सी योरसेल्फ, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट रिएक्टिंग, मैं अपने माइंड को उस पॉजिटिव डायरेक्शन में कंडीशन कर दूं, और फिर हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो जरूर है कि बातें कितनी भी हो, लेकिन नेचुरल है कि नेगेटिव सिचुएशंस के समय आप अगर रिएक्टिव हो जाएंगे तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो ड्रेन हो जाएगी और आप उसमें सफल नहीं होते हैं। इसलिए बहुत सुंदर अपने मैं नाम भूल गई, नॉर्मल, सॉरी, I will just recollect that name also, लेकिन एक महान लेखक ने पुस्तक लिखी है कि हमारे जीवन के अंदर दो सर्कल्स हैं। One is the circle of concern and one is the circle of influence. Circle means, the circle of concern means that which is connected to my life, where I am concerned, connected. Problems है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो मेरी लाइफ से कनेक्टेड है, बट आई हैव नो कंट्रोल अपॉन इट। सिचुएशंस के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। बट देयर इज अनदर सर्कल which is known as the circle of influence, which is within my influence. तो जब सर्कल ऑफ कंसर्न बढ़ जाता है, एक्सपैंड होने लगता है, और मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, तो नेचुरली मेरी एफिशिएंसी जो है क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब हम अपना इंटरनल सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, माय एटीट्यूड्स, माय थॉट्स, माय रिएक्शंस, ये जो है उसको हम बढ़ा देते हैं, तो जितना इसको बढ़ा देते हैं तो नेचुरल है कि वो सर्कल ऑफ कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, एंड दैट इज वेयर आई कैन बी efficient in resolving those problems also in the best possible manner.
तो इसीलिए जो है आप अपने इन्फ्लुएंस में जो है आपका एटीट्यूड्स, आपका थॉट प्रोसेस, आपका परसेप्शन, उन सबको एक्सपैंड करो। जितना ये एक्सपैंड होगा तो वो सर्कल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो एक्सपैंड हो जाता है तो मेरी एफिशिएंसी 0 हो जाती है। दैट इज व्हेन अ पर्सन एक्सपीरियंसेस फेलियर इन लाइफ। इसीलिए जो आपके इन्फ्लुएंस में है उसको बढ़ा दो, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उसको बढ़ाने के चक्कर में नहीं जाओ, क्योंकि उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। आज गवर्नमेंट पॉलिसीज है, उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, वो है। अच्छा, भाई वहां पर मैं रिएक्टिव फोकस अपना बना दूं कि मेरी जो इनर पोटेंशियल है, मेरा एटीट्यूड है, मेरा थॉट प्रोसेस है, सब नेगेटिव कर दूं, तो क्या होगा? क्या वो गवर्नमेंट पॉलिसी सॉल्व हो जाएगी? नहीं। लेकिन आई विल बी अ टोटल फेलियर। लेकिन जो मेरे पास है उसको मैं बढ़ा दूं। अब जब उसको बढ़ा देती हूँ, मेरा एटीट्यूड, मेरा परसेप्शन, मेरे थॉट प्रोसेस, मेरी इनर पोटेंशियल, मेरी इनर स्टेबिलिटी, मेरी धैर्यता, मेरे बहुत कुछ है मेरे पास, और इसलिए उसको जब मैं बढ़ा देती हूँ तो आई डेवलप अ प्रोएक्टिव फोकस इंस्टेड ऑफ अ रिएक्टिव फोकस। आई डेवलप अ प्रोएक्टिव फोकस एंड I can manage myself, handle myself in that negative situation also, and I can successfully come out of it, and I can become a source of inspiration for others also. Okay. और क्वेश्चन आया है, व्हाट आर पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेस? मैम डेफिनेटली आप पॉजिटिव थिंकिंग के एक्सरसाइजेस जो है उसके लिए हम कुछ सजेस्टिव थॉट्स देते हैं, और वो सजेस्टिव थॉट्स जो है इनिशियली पीपल, सो दैट वी हेल्प पीपल के कैसे सोल कॉन्शियस बना जाए। तो जैसे कहा जाता है कि जब भी मेडिटेशन करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज गो विद इन। अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसलिए in order to go within and to stabilize ourselves in that soul conscious stage, we give certain suggestive thoughts, जिसको कई बार कई लोग कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस भी कहते हैं उसको, कि भाई ये सेल्फ सजेस्टिव थॉट्स जिसको कहते हैं, तो वो सेल्फ सजेशंस खुद को देते हैं और धीरे धीरे उस दिशा में हम अपने चिंतन को ले जाते हैं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग एक्सरसाइजेस हम देते हैं, और आप नेट पर जाएंगे तो भी आपको मिल जाएंगे मेडिटेशन को बिगिन करने के लिए भी, या तो फिर आप ब्रह्मा कुमारी को अगर कांटेक्ट करेंगे, आपके नजदीक में अगर कोई भी सेंटर हो वहां जाएंगे तो मेडिटेशन सिखाएंगे भी आपको, वो थॉट्स भी देंगे, और वो एक्सरसाइजेस के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं। नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन कैसे करें? आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन before, when Abhay Gupta ji had asked that question in a different manner, but how to remain positive in negative situation. So negative environment में भी आप अपनी positivity को कैसे maintain करें? Definitely positive nourishment भी देना बहुत जरूरी है। जितना positive nourishment देते जाएंगे आप अपने mind को धीरे धीरे कंडीशन करते जाते हैं उस डायरेक्शन में। और कोई क्वेश्चंस हो? नहीं तो हम एक मेडिटेशन शॉर्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। Ma'am, I will take just 2 questions from the Facebook. Sure. Yes. This is the Seema Joshi. What do you suggest for the women, those who are working as well as taking care at home? How to maintain the balance between the two? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बैलेंस कैसे रखना है, और बैलेंस आज लाइफ में बहुत जरूरी है, और ये खाली वर्किंग वुमन के लिए नहीं है, इवन मेल के लिए भी बहुत जरूरी है टू बैलेंस द प्रोफेशनल लाइफ एंड फैमिली लाइफ एंड सोशल लाइफ। हर जगह बैलेंस जरूरी है। कहाँ बैलेंस जरूरी नहीं है? और बैलेंस तब जरूरी हो जाता है कि जब आपके पास कई डायरेक्शंस है, जैसे कहा आपने, वर्क फील्ड है, फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, ये सारे एरियाज है जहां मुझे अपने आप को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और उसी के लिए जो है सोल कॉन्शियसनेस, व्हेन आई
मैं जब धुरी पर ले आती हूँ अपने आप को, उस धुरी में ले जा करके स्टेबलाइज कर लेती हूँ, तो नेचुरल है कि उस धुरी पर स्टेबलाइज्ड होने से ही हम बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनली मैं खाली एक प्रोफेशनल वुमन नहीं हूँ, या मैं कोई खाली एक फैमिली हाउसवाइफ नहीं हूँ, ये एक रोल नहीं है मेरा, लेकिन बेसिकली आई एम अ सोल। पर्सनल जो मेरी आइडेंटिटी है, वो पर्सनल आइडेंटिटी मेरी क्या है? आई एम बेसिकली अ सोल, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो बीइंग इन द बॉडी, दैट स्पिरिचुअल एंटिटी, इफ आई रियलाइज दैट स्पिरिचुअल एंटिटी, मैं उस बीच में आकर के खड़ी हो जाती हूँ। और इसलिए जब मैं उस रोल में हूं, मैं एज अ स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में अपने आप को स्टेबलाइज करती हूँ, तो फिर आई कैन सी माई प्रोफेशनल साइड, आई कैन सी माई फैमिली साइड। इसको क्या क्या चाहिए, इसको क्या क्या चाहिए, दोनों को मैं देख सकती हूँ। तो बेसिकली आई एम अ बीइंग विथ human experiences, a spiritual being with human experiences, not a human being with not a spiritual being with human experiences. लेकिन जब हम अपने आप को स्पिरिचुअल सेल्फ में ले जाकर के स्टेबलाइज करते हैं, तब सारे एरियाज, खाली प्रोफेशनल फैमिली नहीं, सोशल एंड पर्सनल, ये चारों ही एरियाज को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हम समझते हैं, क्योंकि बेसिकली आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। तो उस दूरी पर ला करके खड़ा करना बहुत जरूरी है। और इसलिए उस कॉन्शियसनेस में जब हम अपने आप को ले आते हैं, तो हम एक डिटैच्ड वे में, जिसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं टेकिंग अ बर्ड्स व्यू, मीन्स यू राइज अबव, और ऊपर से आप देखेंगे तो आप ज्यादा एरिया को देख सकते हैं। जब आप जमीन पर रह के देखते हैं तो शायद उतना ही एक बहुत लिमिटेड एरिया आप देख सकते हैं। सो टेकिंग अ बर्ड्स व्यू, जब मैं उस कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टेबलाइज करती हूँ, आई असेंड ऑन अ हायर प्लेन, ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेन। और वहां से जब मैं देखती हूँ तो एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, और जब डिटैच्ड वे में आप उसको देखेंगे तो आप एक्चुअल सिचुएशन में उस चीज को देख सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं कुर्सी पर बैठी हूं एंड आई गेट सो अटैच्ड टू दिस चेयर कि यहां से मैं अगर वो दरवाजे तक जाना चाहती हूं, लेकिन मैं कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहती, और कुर्सी के साथ अगर मैं जाती हूं, हाउ वुड आई लुक? माई होल बॉडी शेप विल टेक द शेप ऑफ द चेयर, and I would look so funny. People will start laughing at me, which will really cause so much of frustration. But if I really want that chair to come with me there, I just get up from the chair, detach yourself, and lift the chair, उठा लो और ले जाओ वहां पर. I think that will be more comfortable. Similarly, जिस रोल में हम हैं, उस रोल से इतने अटैच्ड हो जाते हैं, इतने अटैच्ड हो जाता है कि आई डोंट वांट टू लीव दैट, और उसमें पूरा मेरा कॉन्शियसनेस उसका शेप ले लेता है, एंड दैट इज वेयर पीपल विल आल्सो लाफ एट मी. एक तो मैनेज नहीं करती है, दो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, तीन कैसे मैनेज कर पा रहे हैं. बट इफ आई रियली डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम दैट रोल, एंड in a detached manner, if I observe that role, शायद मैं बहुत अच्छी तरह से जस्टिस कर पाऊंगी उस रोल को भी. राइट? अनदर क्वेश्चन? हाँ जी विकास जी. This is by Ramesh Chandar. How to relieve stress? हेलो. हाँ जी. I'm not getting you. Actually, your voice is not audible.
हाँ जी, नहीं आपका माइक ऑन करना पड़ेगा। विकास जी आपका माइक बंद है, म्यूट है, माइक Yes, ma'am. अनम्यूट। जी The last question was how to relieve from stress during the if one is affected by COVID. जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि देखो ये कोविड अगर किसी को लग जाता है, मान लो कि कोरोना किसी को लगा भी, तो उसमें एकदम घबराने के बजाय, क्योंकि क्या होता है कई लोगों की बातें हमने सुनी होती है, कई लोगों के एग्जाम्पल्स देखे होते हैं, तो उस सब चीजों को हम अपने साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। और कहा जाता है जैसा चिंतन वैसा जीवन, तो चिंतन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए ये जरूर है कि अगर ऐसी बीमारी आ भी जाती है, मैं प्रैक्टिकली आपको अपने अनुभव से कहती हूँ कि मेरी छोटी सिस्टर को कोरोना हो गया था, एंड उन दिनों में हुआ इनिशियल स्टेज में, तो आज तो कई लोग होम क्वारंटाइन, अब उस समय वो सिविल हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा, और वहां कोई फैसिलिटीज नहीं थी, वहां कोई फैसिलिटीज नहीं, और उनके सामने लोगों की मौत हो रही है, लोगों को लपेटा जा रहा है प्लास्टिक में, तो नेचुरल है हर कोई जो देखता है कि हमारे साथ भी यही होगा, और हर कोई ये सोचता है कि क्या यही अंजाम हमारा भी है, तो बहुत बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। इनफैक्ट मेरी सिस्टर भी बहुत स्ट्रेस में आ गई थी, और उस समय हमने उसको यही स्पिरिचुअल काउंसलिंग देते रहे टाइम टू टाइम फोन पर कि देखो हर एक के साथ एक जैसा हो ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात हमने उसको यही बहुत कहा, क्योंकि वो बहुत घबराई हुई थी उन चीजों को देखते हुए, फर्स्ट टाइम उसने देखा ऐसी, तो बहुत घबराई हुई भी थी, तो हमने उसको यही कहा कि देखो बहन, हो सकता है कि ये कोरोना जो हुआ है, कोई ना कोई एक कार्मिक अकाउंट बीच में आ रहा है, कार्मिक अकाउंट है, तो तुम आज सुबह में उसको बोला कि तुम सुबह सुबह उठो, ये मेडिटेशन करो और ईश्वर के सामने क्षमा मांगो कि मेरे द्वारा किसी को भी अगर दुख मिला है तो आज मैं सच्चे दिल से क्षमा चाहती हूँ, उन सभी लोगों से क्षमा चाहती हूँ, पशु पक्षी प्रकृति से, सबसे, किसी से भी मेरा ऐसा व्यवहार हुआ हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। दूसरे दिन मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, तुमने किया, हमने जो एक विधि बताई तो तुम्हें, उसने कहा हाँ किया, मैंने सुबह सुबह उठ के ईश्वर से क्षमा मांगी, उन सभी लोगों से भी क्षमा मांगी जिससे मैंने कभी जिंदगी में कोई बुरा व्यवहार किया हो, उनसे भी क्षमा मांगी। तो मैंने कहा उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, तो उसने कहा उसके बाद मेरा मन इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया, जैसे एक बोझ था वो बोझ मेरा खत्म हो गया। तो मैंने देखा कि प्रैक्टिकली अगर किसी को कोरोना लग जाता है तो उसमें पैनिक होने के बजाय ये भी कोई कार्मिक अकाउंट है जिस कार्मिक अकाउंट को मुझे सेटल करना है, और सेटल करना है तो जितना किसी से क्षमा मांग लो, ईश्वर से भी क्षमा मांग लो, तो नेचुरल है कि वो क्षमा का सागर है, वो जरूर क्षमा करता है, और देखा जाता है कि उसका बाद मन का बोझ हल्का हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। उसका ये एक्सपीरियंस था, और मैंने उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट जिसके जिसके साथ भी किया, कई लोगों ने मुझे कहा मुझे दीदी कोरोना हो गया, मैं क्या करूं, तो मैंने उनको यही एक सजेशन दिया, और उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सरसाइजेस दिया कि ये पॉजिटिव थॉट्स आप अपने माइंड को देते जाओ, और जितना पॉजिटिव थॉट्स देते जाएंगे तो नेचुरल है कि आपके अंदर एक मनोबल बढ़ेगा, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, और वो शक्ति आपको हर प्रकार की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में से भी बाहर आने की ताकत देती है। तो इसीलिए पैनिक होने के बजाय, नेगेटिव थॉट्स जनरेट करने के बजाय, उसके साथ ऐसा हुआ इसीलिए मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, ये सोचने के बजाय, किसी के साथ हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को उस समय जैसे कहा जाए कि इतना पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखे, और बहुत अच्छे विचार सुबह सुबह अपने मन को देते जाए, स्पिरिचुअल थॉट्स देते जाए, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से आप उस सिचुएशन से भी बाहर आ जाएंगे। Thank you. Manju Anand, several children, especially teenagers,
are not willing to de-addict themselves from steroids, drugs, and are infatuated to cell phones round the clock. What is the remedy? Because the counseling has not yielded any result. हाँ, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, आज संसार के अंदर बढ़ रहा है। और मैं एक वीडियो अभी देख रही थी कुछ समय पहले, मेरे पास किसी ने एक वीडियो भेजा था, तो उसमें देखा था कि इन लोगों ने कंट्रोल ग्रुप और अनकंट्रोल ग्रुप रखा, 2 ग्रुप्स लिए, जिसमें 10-10 लोगों को लिया और उनको एक कोठरी में रखा गया कि आपको ये कोठरी में रहना है और आपको मोबाइल फोन नहीं दिए जाएंगे, और मोबाइल फोन अगर रखना भी है आपको तो इंटरनेट एक्सेस नहीं होगी। तो इंटरनेट एक्सेस न होने कारण आप हाँ किसी से फोन पर बात कर सकते हैं बस, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैगजीन्स पढ़ो, आपको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बहुत कुछ रखा होगा उस रूम में, आप वो करो। तो जो कंट्रोल ग्रुप था और एक अनकंट्रोल ग्रुप था, तो आप देखा गया कि जिसको इंटरनेट एक्सेस मिला था, ये सब मिला था, वो तो जैसे उसी में लगे रहे सारा दिन, अपने आप को जैसे बिजी कर, माने इतना ज्यादा वो बिजी। और जो कंट्रोल ग्रुप था, जिसको जो है कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं था, कोई ये नहीं था, फोन उनका चल ही नहीं रहा था उस एरिया में, और जो है पहला दिन तो जैसे तैसे निकाल दिया, कुछ मैगजीन उलट पुलट किया, लेकिन उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन आना चालू हुआ कि दूसरे दिन से उन्होंने अपना सर पटकना चालू किया, दीवारों में जाग आना शुरू हुआ। माना इतना एडिक्शन है मोबाइल का भी आज की दुनिया के अंदर, या इतना एडिक्शन जो है वो हो गया है इन साधनों से भी। तो इसीलिए आवश्यकता है कि जब साधन है तो मैं यही कहूंगी कि मास्टर बनकर यूज करो। साधन हमारे लिए है, साधन को मास्टर नहीं बनाओ। इसीलिए कहा जाता है when we become the masters, they are very good servers, but if you make them the masters, they will be very bad masters, और वो आपकी जिंदगी को तबाह करेंगे। तो इसीलिए कुछ समय के लिए अपने आप को भी उन मोबाइल से दूर रखने का आप खुद ही प्रयास करो कि भाई ये 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को मुझे इंटरनेट एक्सेस करना है, उसके अलावा उससे ज्यादा नहीं। तो धीरे धीरे अपना कट करते जाओ, धीरे धीरे कट करते जाओ, और बी मास्टर्स, मेक देम योर सर्वर्स। तो जब उसको सर्वर्स बना देंगे तो नेचुरल, नहीं तो बाद में फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खुले हैं उसके लिए भी, आज मोबाइल्स के लिए भी, ड्रग्स के लिए भी, ये सब चीजों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स का भी आप चाहे सहयोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, और अपने आप को कम से कम उससे बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जहां आप देखते हैं कि वहां आप उसके क्लचेस में आते जा रहे हैं, बहुत आवश्यक है कि जैसे ये रियलाइजेशन मिले तो आप उससे धीरे धीरे अपने आप को दूर करते जाओ, किसी न किसी विधि से, चाहे तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाकर के भी अपने आप को ठीक करने का प्रयास करो, नहीं तो उसके बाद उसके क्लचेस में से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए देर हो जाए उसके पहले ही आप अपने आप को मैनेज करना चालू करो। इनिशियली तो वो बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस भी देंगे, बहुत मेंटल रिलैक्सेशन का भी अनुभव कराएंगे, लेकिन नेचुरली जो चीज नेगेटिव है, जो एक विशेष सर्कल है, उस विशेष सर्कल में पॉइजन ही होगा, इसलिए उसको कहा ही गया है विशेष सर्कल। तो एक विशेष सर्कल में अगर आप जा रहे हैं तो नेचुरल है कि जितना जल्दी आपको इसका एहसास हो जाए उतना जल्दी आप उससे बाहर निकलने का प्रयास करो, किसी न किसी की मदद लेकर के भी। तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को संवार सकेंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं कह सकते हैं। Thank you, Bhai. We will not take any other questions. I will ask Ritu to say a few words before we end up. Ritu Ponta, Ronnie. And tomorrow we will again be discussing a legal perspective, that is countering cyber defamation law and procedure, by Mr. Shyam Padam, an advocate who also runs a series of webinars. He's a prominent advocate from Kerala High Court. So do stay connected with us tomorrow 4 p.m. And
Ritu ma'am, you are unmuted. Kindly. Okay, sir. First of all, can you Ma'am, you hear can me, show your sir? video. You can show your Okay, video sir. also. Okay, sir. Yes. So, first of all, very good afternoon to all of you. And I want to, on behalf of Shimla University, I want to thank respected Usha Didi, who quite enthusiastically consented to the proposal that we sent to her for having a class on self-management, because on stress management, because it is the need of the hour, and many of our students are struggling with the problem of depression. And she has very beautifully and very systematically put forth before the spectators, before the audiences, the the issue and the ways to overcome the problem of stress. So once again, thank you from the deep concerns of my heart to respected Usha Didi, and also grand thanks to Vikas sir, who has collaborated this particular session so well and so systematically. So once again, a heartfelt thanks. Om Shanti. थैंक यू मैम। और दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने इन सब चीजों का वर्णन किया, मेरे लिए तो थोड़ा बहुत अब आपके साथ स्पष्ट करें। Once you get so much into the practice of law, then to come back to the Hindi, it becomes slightly difficult, even though it's our roots and we keep on speaking in Hindi also. But the way you connected the stress management and the modes and means have actually given a different thought process and a flip to the mind. And if one trains the mind like what you said, nothing is that, as they say, that if you can perceive, you can achieve. And what you can achieve, it's only your thought processes and it's your desire. And what you rightly said, it is better to try and fail rather than failing to try. And thus, if we try to achieve that, we can manage the stress. As they say, the word itself, impossible, means I am possible. If we have that desire to improve ourselves, the desire to overcome anything, especially the negative energies, the negative mindsets, can always be done. But that's the only desire for going forward. And before we proceed and end the entire function, I will just ask Didi to say last two parting lines for the entire participants who are watching us live on the Facebook as well as on this webinar. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you for being with us today evening and allowing me to share these wonderful thoughts with you. And thank you so much, Vikas ji, for organizing this wonderful session and giving the benefit to so many souls. Together with that, thanks to Ritu ji also, who became an instrument to ask Vikas sir and especially Shimla University to be with us in this gathering. And so it was such a nice evening that we all had. And definitely I extend my invitation to all of you. Whenever you get time, you can come to Mount Abu also. In Mount Abu, we have a special wing, which is known as the jurist wing, where all the jurists and advocates are connected. And at the same time, we have developed a course which is known as spiritual jurisprudence. And so we this session was developed specially by late brother Krishna Ayerji from Kerala, and he especially designed this whole spiritual jurisprudence because he was connected to Brahma Kumaris for many years. So I would like to thank all of you who has been participated, who are participants today in our evening session, this Zoom session. And I believe there were many who are watching us on maybe YouTube also. So thanks to everyone and have a nice week further. And thank you all. Om Shanti. खुश रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जी।
शुक्रिया मैडम। Thank you.